Okay. We had started the topic of critical speeds of shafts having multiple disks. And we had understood that the shaft containing multiple disks will start to bend in the transverse direction, just similar to the case when it had only one disk. If the shaft had only one disk, then the bending of the shaft would be somewhat like this. These are the bearings. The disk is shown like this. Now this is the side view, mind it. Okay, so I'm not drawing the complete disk. The disk is like this. Now this is what you call as the deflection of the shaft, and let us say we are depicting it with a variable y. The center of gravity of the disk is not at the center of the disk, but rather at some other point, which is e distance from the geometric center. So this is the point where the entire mass of the body is situated. So if you ask if what is the centrifugal force acting outward, then the centrifugal force F is m into E plus y omega square. Applying the formula of mr omega square, this is the outward centrifugal force. Now what happens if we have two disks? If you have two disks, then you will have two centrifugal forces acting outwards, m1 e1 plus y1 omega square and m2 e2 plus y2 omega square, where y1 and y2 are the deflections of the shaft. So this distance is y1 and this distance is y2. Okay. Now what are we interested in knowing here? We are not interested in understanding or finding the value of y1 and y2 actually. What we are after is the critical speed. So if your shaft had only one disk, then there is only one critical speed. If your shaft has two disks, then it will have two critical speeds. So now you want to find out, let us say we take an example of a shaft having two disks. So now you want to find out what will be the two critical speeds. You want to find both the critical speeds. What will happen if the shaft has three disks? Then how many critical speeds will be there? We will be having three critical speeds. So the number of disks actually directly gives you the number of critical speeds a particular system or a particular shaft rotor system will have. So regarding this, we understood that there is a complication in the computation of this y when it comes to two disks. For one disk, it is very simple. You can get the value of this y or capital R, which we commonly referred to it earlier. This capital R was simply given by E R square upon 1 minus R square. End of story. एक ही डिस्क है तो y या कैपिटल R जो बनता था आपका उसकी वैल्यू इससे निकल जाती है और रेंज ऑफ स्पीड्स अगर कभी निकालनी हो तो यहाँ पे प्लस माइनस और यूज कर लेते थे अपन लेकिन ये अब केस ये नहीं है नाउ द केस इज दैट when you have two disks, then the deflection produced at one point, say point number one, where disk one is located, influences the deflection produced at point two. And similarly, the deflection produced at point two due to the centrifugal force at two will in turn influence the deflection of point one. ये एक दूसरे को आपस में इन्फ्लुएंस करते हैं यानी कि अगर मैं फर्स्ट लोकेशन पे डिस्क लगाऊं ही नहीं तो भी सेकंड लोकेशन की डिफ्लेक्शन के कारण फर्स्ट लोकेशन पे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन अपने आप पैदा हो जाता है
और अगर उल्टा करूं कि सेकंड लोकेशन पे डिस्क ना लगाऊं और सिर्फ फर्स्ट लोकेशन पे डिस्क लगा के चलाऊं, तो सेकंड लोकेशन पे अपने आप ही एक डिफ्लेक्शन आ जाता है फर्स्ट पे आने के कारण। तो नाउ वी वांट टू कैलकुलेट कि भाई अभी y1 y2 एक दूसरे के अंदर उलझे पड़े हैं, how do we segregate them, how do we actually find the value of y1 and y2, and then after finding the proper value of y1 and y2, how do we eventually proceed to find the two critical speeds। अपन को क्रिटिकल स्पीड्स चाहिए, लेकिन क्रिटिकल स्पीड तक पहुंचने के लिए ये y1 और y2 की वैल्यूज क्रूशियल है। तो पहले तो इस गुत्थी को सुलझाएं, ये दोनों आपस में उलझे पड़े हैं, इनको अलग अलग करके कैसे एनालाइज करें। सो वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट, which are written in general as aij। तो जैसा कहा, जो जेथ इंडेक्स पे जो नंबर होता है उस लोकेशन पे तो अप्लाई करो 1 न्यूटन फोर्स, यानी कि यूनिट फोर्स, और ये पता करो कि ith लोकेशन पे कितना डिफ्लेक्शन आया। ठीक है। सो यूजिंग दिस नोटेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट्स, हम वापस से ये डिफ्लेक्शन कर्व लेते हैं और हमने कहा कि दिस इज लोकेशन 1, दिस इज लोकेशन 2। नाउ इफ आई से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a12, तो इसका क्या मतलब होगा, कौन सी लोकेशन पे फोर्स लगाऊंगा, 2। सेकंड लोकेशन पे 1 न्यूटन की फोर्स लगाइए और ये पता कीजिए कि इस पे 1 न्यूटन की फोर्स लगाने पे फर्स्ट लोकेशन पे कितना डिफ्लेक्शन आया, इसकी वैल्यू है a12। This measurement of the displacement automatically produced at location 1 when you apply a unit load at location 2 is the flexibility coefficient a12। ठीक है। अब उसी तरीके से व्हाट इज a21, a21 निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, 1 पे लोड लगाओगे। now I will फोर्स। apply 1 Newton load at location 1 and I will see how much automatic deflection is produced at location 2। So this measurement is a21। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब मेरे को ये बात बताओ, अगर मैं इस नोटेशन को थोड़ा सा आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, कैन आई हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी नोटेशन a11। इसका क्या मतलब होगा, अगर मैंने नोटेशन को a11 लिख दिया तो इसका क्या मतलब सर 1 के ऊपर जो लोड लगाओगे वो शो करेगा कि डिस्प्लेसमेंट 1 पे कितना हो रहा है। है। यस एग्जैक्टली, सो दिस हैज आल्सो गॉट सम मीनिंग। फर्स्ट लोकेशन पर लोड भी लगाओ और फर्स्ट लोकेशन पर ही उस खुद के लोड के कारण कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है ये पता भी कर लो। तो अब क्या कर रहे हो आप, a11 निकालते टाइम यू अप्लाई द लोड एट लोकेशन 1, 1 न्यूटन, और ये पता करो कि फर्स्ट लोकेशन पर ही कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो अब ये जो रीडिंग होगी दिस विल बी a11, एंड सिमिलरली यू हैव a22, विच मीन्स सेकेंड लोकेशन पे 1 न्यूटन की फोर्स लगाओ और ये पता करो कि सेकेंड लोकेशन पर ही अपनी खुद की फोर्स के कारण कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, दैट इज a22। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट। तो अगर आपके पास में कोई सी भी दो लोकेशंस हैं, किसी भी फ्लेक्सिबल रॉड पे एक लोकेशन और दो लोकेशन, ठीक है,
और ये दो लोकेशन कहीं पे भी हो सकती है, सेकंड लोकेशन चलो मानो यहाँ पर है, तो आपके इन दो लोकेशंस को लेकर के हमेशा आपके पास चार फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट्स निकलेंगे ही निकलेंगे, A11, A12, A21, A22। ठीक है। अच्छा, अब इसी लॉजिक को एक्सटेंड करते हुए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर मैं दो की बजाय तीन लोकेशन ले लूं तो मेरे कितने फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट्स बनते हैं? 9। नाम बता सकते हो उनके? ए वन A11, ए वन टू तो है ही, A1, A13, A13 और बन जाएगा। A13 का A मतलब क्या है कि थर्ड लोकेशन पे यूनिट फोर्स लगाऊं तो बताओ फर्स्ट लोकेशन पे ऑटोमेटिक डिफ्लेक्शन कितना आएगा। उसी तरीके से A21, A22 और A23, and similarly we will have three more, A31, A32 and A33। ठीक है। So these are the flexibility coefficients if you have three mutual locations to compare. If you have only two locations to compare, then this set indicates the set of flexibility coefficients. और अगर एक ही जगह पे लोड लगा रहे हो तो आपका सिर्फ एक ही फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट बनेगा। और इसको अपन कभी फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट के हिसाब से बोलते नहीं थे। A11 का क्या मतलब है? फर्स्ट लोकेशन पे लोड लगाई, फर्स्ट पर ही नाप लिया कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो इसको कभी फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट के टर्म्स से या फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट के नजरिए से नहीं देखा था हमने, लेकिन अब अपन को समझ में आ गया कि फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट क्या है और ये किस काम आती है। ठीक है। नाउ there is something in the literature of strength of materials which goes by the name of Maxwell's reciprocal theorem। ये आपने सुना है क्या? नहीं सुना तो नहीं सुना बोल दो, बस मैं जानना चाहता हूं कहीं किसी ने भूले भटके सुना है क्या? नो सर। मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम आपके सिलेबस में है। इसका प्रूफ और इसका कॉन्सेप्ट पूरा आपको अलग से आगे पढ़ाएंगे जब अपन मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम में जाएंगे। लेकिन आज के डिस्कशन के लिए सिर्फ मैं आपको क्विकली इस थ्योरम का सार बता देता हूं। व्हाट इज द summary of this theorem? The theorem says for any elastic system, यानी कि इलास्टिसिटी होनी चाहिए सिस्टम में, for any elastic system the flexibility coefficients A12 will always be equal to A21, A13 will always be equal to A31 and A23 will always be equal to A32 and so on। अगर आपके पास में चार लोकेशंस हैं कंपेयर करने के लिए तो आपके फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट्स कैसे बन जाएंगे? जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। ठीक है। लेट अस से आई एम टेकिंग एन इलास्टिक रॉड एंड आई हैव फोर लोकेशंस जिन पे मैं लोड लगाना चाहता हूं। ठीक है। देन द फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट्स, ये पूरी रॉड जो है, दिस होल रॉड इज फ्लेक्सिबल जस्ट लाइक अ शाफ्ट। तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट्स का जो सेट बनेगा दैट विल बी A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, and I will quickly complete the set. Maxwell's reciprocal theorem says that A12 will definitely be equal to A21. A13 will definitely be equal to A31. A14 will definitely be equal to A41. A23 will be equal to A32. A24 equal to A42 and A34 equal to A43. So if you look at this matrix now, you will get a symmetric arrangement like this.
if you leave out the diagonal elements which are a11, a22, a33, a44, then all the other elements of this matrix in the upper triangular part, which are contained in the red zone, and the lower triangular part, which are contained in the purple zone, they will be mirror images of each other. ये दोनों सेम होंगे, 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 ये दोनों like they will be mirror images of each other. This is what Maxwell's reciprocal theorem says. In short, आपको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ करना ही नहीं है. मैं आपको कोई भी रैंडमली एक फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट दे दूं, लेट अस से A13, ये किसके बराबर होगा आप बताओ. A31 A31 के बराबर होगा. बस ब्लाइंडली इंडेक्स को शफल कर देना है. 13 है, 31 कर दो, ये बराबर ही मिलेंगे. ये कहता क्या है? ये कहता यह है कि आप कोई भी फ्लेक्सिबल सिनारियो ले लो, जैसे कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम ले ली, ठीक है. इस पे मैं एक फर्स्ट लोकेशन पे लोड रख रहा हूं 1 न्यूटन का, और एक सेकेंड लोकेशन है, इसकी बात नहीं कर रहा, और एक थर्ड लोकेशन है. तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट लोकेशन पे जब आप लोड रखोगे तो इस बीम में एक डिफ्लेक्शन आएगी, और वो डिफ्लेक्शन ऐसा कुछ होगा. तो जैसा दिख रहा है थर्ड लोकेशन पे थोड़ी सी डिफ्लेक्शन तो आ ही रही है. ये डिफ्लेक्शन कितना है? इसी डिफ्लेक्शन को आप A31 कहते हो. यानी कि फर्स्ट पे जब मैंने लोड रखा तो 3 पे कितना डिफ्लेक्शन आया. मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम सिर्फ इतना कहता है कि अब आप एक काम करो, ये जो लोड है इस 1 न्यूटन के लोड को उठा करके फर्स्ट लोकेशन पे ना रखने की बजाय इसको थर्ड लोकेशन पे रख दो, सेम लोड. तो अब जो डिफ्लेक्शन आएगा वो ऐसा आएगा. तो इसका मतलब है कि थर्ड लोकेशन पे लोड रखने से फर्स्ट वाली लोकेशन पे ऑटोमेटिकली कुछ डिफ्लेक्शन आया. इसको आप अपने कन्वेंशन के हिसाब से A13 नाम देते हो. यानी कि मैंने लोड 3 पे लगाया और 1 पे डिफ्लेक्शन चेक किया. मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम सिर्फ यह कहता है कि फर्स्ट पे लोड लगाओ, 3 पे डिफ्लेक्शन नापो, या वही लोड 3 पे लगाओ और फर्स्ट पे डिफ्लेक्शन नापो, ये सेम आएगी. This is what Maxwell's reciprocal theorem says. Provided the locations are the same, 1 and 3, इन पे लोड्स की अदला बदली कर दोगे तो डिफ्लेक्शन की मात्रा में चेंज नहीं आता, सेम डिफ्लेक्शन मिलेगा आपको. ठीक है. मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम समझ में आ गया क्या आपको? यस सर. तो ये भी अपन काम में लेंगे अपने अब आने वाले टॉपिक्स के अंदर. तो लेट अस सी कि ये सारी चीजें, अभी ये नई नई इंफॉर्मेशन बहुत सारी आ गई. अभी इन सब चीजों को लेके अपन करने क्या जा रहे हैं? अपन इस चीज से पूरा भटक चुके हैं कि भाई आप निकालना क्या चाहते थे आखिर. हमने एक एग्जांपल लिया था, एक वर्टिकल शाफ्ट, ये रहा वर्टिकल शाफ्ट है, और उस पे 2 रोटर लिए थे, और 2 रोटर होने के कारण हमको पता है कि इस पे 2 नेचुरल फ्रीक्वेंसी आएगी या फिर 2 क्रिटिकल स्पीड आएगी रोटेशन की. हमें तो वो पता करना था. अब ये पता नहीं कहाँ कहाँ से मैक्सवेल आ गए, फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट आ गई, लेकिन इन चीजों का पूरा लॉजिक अभी 1 मिनट में पूरा साफ सामने खुल जाएगा राज. और एक बार जब ये सामने आ जाएगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें अपन ने इतनी मेहनत क्यों की नई नई चीजें सीखने में. नाउ लेट अस गो बैक टू आवर ओरिजिनल प्रॉब्लम. This is the situation now. Location 1, location 2, I have an outward centrifugal force F1 and I have an outward centrifugal force F2. इनकी वैल्यूज भी मैं अभी साथ साथ ही लिख देता हूँ. पहले डिस्क का मास मैं M1 ले रहा हूँ, दूसरे डिस्क का मास मैं M2 ले रहा हूँ. ठीक है.
पहले डिस्क के मास की एक्सेंट्रिसिटी E1 ले रहा हूं, दूसरे मास की एक्सेंट्रिसिटी E2 ले रहा हूं, ठीक है। और डिस्क का जो ज्योमेट्रिक सेंटर है, पहला वाला डिस्क टोटल Y1 से स्ट्रेच्ड है, और दूसरा वाला डिस्क का जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वो टोटल Y2 से स्ट्रेच्ड है। So if somebody asks me what is the value of F1, I can simply say it is M1 Y1 plus E1 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आपका शाफ्ट जो है वो ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। एंड सिमिलरली माय F2 विल बी, बताओ कितना होगा F2, कोई एक जना बता दो। N2 Y2 plus E2 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर, ये जो ओमेगा है ये शाफ्ट के रोटेशन की ओमेगा है। अपन को अभी ओमेगा एन निकालने हैं, दो वैल्यूज, जिसपे कि क्रिटिकल स्पीड बन जाएगी, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इसमें ये y1 और y2, जैसा मैंने कहा था, दे आर इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, so दैट इज द प्रॉब्लम। तो हाउ डू आई फाइंड y1 एंड y2? तो अब देखो, मैं y1 को कैसे लिखने जा रहा हूँ। आई एम राइटिंग y1 एज a11 into f1 प्लस a12 into f2। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आपको ये समझाते हैं कि ये ऐसा सिर्फ इतना सा लिख देने से ये सारी गुत्थी कैसे सुलझती। एक बार y2 को भी लिख देता हूँ। y2 will be written as a12 into f1, sorry, a21 into f1 plus a22 into f2। बस, गेम ओवर। बट द ओनली थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड ये ऐसा क्यों। सबसे पहले तो ये देखो a11 का क्या मतलब है। अपन अब इस इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है, पहले वाले इक्वेशन। लेट मी राइट इट वंस अगेन। y1 is equal to a11 f1 plus a12 f2। क्यों? a11 का क्या मतलब है? फर्स्ट लोकेशन पे मैंने यूनिट फोर्स लगाई, 1 न्यूटन लगाया। देखो ए का जो डेफिनेशन है दैट इज ऑलवेज फॉर 1 न्यूटन। उसको इससे मतलब नहीं है कि एक से ज्यादा लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, आप तो 1 न्यूटन लगाओगे, यही उसकी डेफिनेशन है। तो फर्स्ट लोकेशन पे 1 न्यूटन लगाई, तो फर्स्ट ही लोकेशन पे कितना डिफ्लेक्शन आया, ये है ना a11 का मतलब। तो अब ये बताओ कि अगर फर्स्ट लोकेशन पे मैं 1 न्यूटन ना लगा करके F1 न्यूटन लगाऊं, तो फर्स्ट लोकेशन पे कितना डिफ्लेक्शन आएगा। ये बोलता है कि अगर आपने फर्स्ट लोकेशन पे 1 न्यूटन लगाया होता तो a11 डिफ्लेक्शन आता, और अगर फर्स्ट लोकेशन पे F1 न्यूटन लगाऊं तो कितना डिफ्लेक्शन आएगा, a11 इंटू F1 आएगा। राइट और रॉन्ग, समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, यस सर। है ना। तो कुल मिलाकर के y1 की जो पहली टर्म है a11 f1, वो सिर्फ इतना बता रहा है कि अगर मैं शाफ्ट की फर्स्ट लोकेशन पे F1 फोर्स लगाऊं तो फर्स्ट लोकेशन पर F1 फोर्स के कारण कितना डिफ्लेक्शन आएगा, ये बता रहा है। अब सेकंड वाली टर्म को देखो। सेकंड वाली टर्म कह रही है a12 का मतलब क्या है। ये बोल रहा है कि भाई मैंने सेकंड वाली लोकेशन पे 1 न्यूटन लगाई, तो फर्स्ट लोकेशन पे कितना डिफ्लेक्शन होगा, फर्स्ट लोकेशन पे डिफ्लेक्शन होगा a12। सेकंड लोकेशन पे मैं यूनिट फोर्स लगा रहा हूं, तो फर्स्ट लोकेशन पे कितना डिफ्लेक्शन होगा, a12। अब मैंने सेकंड लोकेशन पे एक्चुअली फोर्स कितना लगा रखा है, 1 न्यूटन तो नहीं लगा रखा, मैंने F2 लगा रखा है। तो टोटल डिफ्लेक्शन F2 को सेकंड लोकेशन पे लगाने पे फर्स्ट लोकेशन पे कितना डिफ्लेक्शन आएगा, a12 इंटू F2 आएगा। ये समझ में आएगा? नहीं सर, वापस समझा दो सर। ये देखो ये दो टर्म्स हैं। a11 f1 का मतलब है फर्स्ट लोकेशन पे F1 फोर्स लगाई तो फर्स्ट लोकेशन पर ही कितना डिफ्लेक्शन हुआ, a11 f1।
ये क्लियर हो गया था? हाँ सर। A12 कहता है लोड तो लगाओ सेकंड लोकेशन पे और ये नापो कि फर्स्ट पे कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है। आप ये देखो, A11 और A12 में जो पहला इंडेक्स है वो दोनों 1 है। इसका मतलब है अपन ये पूरी कहानी फर्स्ट लोकेशन की डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। और A12 का मतलब होता है लोड तो लगाओ सेकंड लोकेशन पे और डिफ्लेक्शन नापो फर्स्ट लोकेशन पे। A11 का मतलब है लोड लगाओ फर्स्ट लोकेशन पे और डिफ्लेक्शन भी नापो फर्स्ट लोकेशन पे। तो डिफ्लेक्शन पूरी की पूरी फर्स्ट लोकेशन पे नापी जा रही है अभी, लेकिन एक बार तो लोड फर्स्ट पे लग रहा है और एक बार लोड सेकंड पे लग रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे को ये पता लग रहा है कि फर्स्ट लोकेशन पे F1 लगाने से और सेकंड लोकेशन पे F2 लगाने से फर्स्ट लोकेशन पे टोटल डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। हो गया ना क्लियर? हाँ सर। अब यही सेम कहानी अगर मैं उल्टा कर दूं, अब A11F1 की बजाय मैं अब A21F1 कर दूं और इसमें ऐड करूं A22 के साथ F2 को, तो ये सेम कहानी सेकंड लोकेशन की टोटल डिफ्लेक्शन बताएगी। कैसे बताएगी? ये बोल रहा है पहले तो लोड फर्स्ट लोकेशन पे लगाओ, ये रहा, और नापो कि सेकंड लोकेशन पे कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है। ये देखो, डिफ्लेक्शन अब सिर्फ 2 और 2 पर ही नापा जा रहा है। तो फर्स्ट लोकेशन पे F1 लगाओ और पता करो कि सेकंड लोकेशन पे कितना डिफ्लेक्शन आया। उतना तो ले ही लिया आपने डिफ्लेक्शन, प्लस अब सेकंड लोकेशन पे F2 लगाओ और फिर से सेकंड लोकेशन पर F2 के कारण जो डिफ्लेक्शन आ रहा है उसको भी नाप लो। वो हो गया A22 इंटू F2। इन दोनों डिफ्लेक्शन को ऐड कर दो तो पता लग गया कि भाई टोटल डिफ्लेक्शन सेकंड लोकेशन पे कितना आ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पूरा मंजर आपके सामने। यस सर होगा। ठीक है, इसीलिए अपन इन दो फॉर्मूले को ऐसा लेते हैं। नाउ प्रोसीडिंग विद दिस फॉर्मूला, एक बार आपको ये चीज समझ में आ गई, फिर उसके बाद आपको आगे जो करना है वो चीज सिंपल है। आपने F1 को ऑलरेडी पता कर रखा है, M1 ओमेगा स्क्वायर Y1 इंटू सॉरी Y1 प्लस E1। F2 आपको पता है M2 Y2 प्लस E2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इन चीजों को यहाँ पे सप्लाई कर दीजिए आप, F1 की जगह पे, F2 की जगह पे, F1 की जगह पे, F2 की जगह पे। ठीक है, अभी अपन को A11 A12 नहीं पता, उसको छोड़ दो, लेकिन F1 F2 तो पता है, वो डाले आपने। उनको डाल करके आपको ये एक्सप्रेशन मिलेंगे, Y1 इक्वल टू दिस, Y2 इक्वल टू दिस। ये एक बार हाथ से करके देख लेना, मैं अभी लिख करके और टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता क्योंकि अपन को एक न्यूमेरिकल पे डिस्कस करना है। ठीक है, अब आगे स्टेटमेंट आता है, भाई आप तो क्रिटिकल स्पीड की तहकीकात कर रहे हो ना, तो क्रिटिकल स्पीड दो है। तो अगर इस शाफ्ट की रोटेशन की ओमेगा आपकी किसी भी एक क्रिटिकल स्पीड से मैच कर गई, ओमेगा N1 से या फिर ओमेगा N2 से, तो ये Y1 और Y2 का क्या हाल होगा, कोई बता सकता है? ये जो शाफ्ट की जो डिविएशन है ये कितनी हो जाएंगी अगर ओमेगा की वैल्यू क्रिटिकल स्पीड पे आ गई, तो Y1 और Y2 कितनी हो जाएंगी, आपको क्या लगता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम या फिर टेंडिंग टू इंफिनिटी या वेरी हाई कह लें अपन। ठीक है, अगर शाफ्ट टूटे नहीं, बहुत ही मजबूत है, क्रिटिकल कंडीशन में आने के बाद भी वो बस वायलेंटली बहुत हाई एम्पलीट्यूड पे कर लेगा लेकिन टूट नहीं रहा, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि Y1 एंड Y2 विल बी वेरी वेरी लार्ज, राइट? So in the case of critical speeds, I can conveniently say that in comparison to Y1 and Y2, these eccentricities can be ignored. समझ रहे हो? भाई अगर क्रिटिकल स्पीड नहीं आई है तब आप E1 और E2 को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन अब आप ये मान रहे हो कि अगर मेरी ये जो ओमेगा इन इक्वेशंस में रखी हुई है, अगर ये क्रिटिकल स्पीड्स में से कोई एक बन जाए तो मेरी Y1 और Y2 इतनी बड़ी हो जाएगी कि फिर E1 E2 को लेने की जरूरत ही नहीं है, ये इनके सामने बच्चे हैं फिर। सो सिंस आई एम इन्वेस्टिगेटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा N1 एंड ओमेगा N2, तो मैं इस E1 और E2 को
इग्नोर कर दूंगा, और इनको इग्नोर करके ये देखो लेफ्ट साइड में y1 है, राइट साइड में y1 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इन दोनों इक्वेशंस में पहले तो E1 E2 को एलिमिनेट किया, फिर जो बची हुई इक्वेशन है उनमें सारी चीजों को मैं एक साइड में लेकर के आ गया और राइट हैंड साइड को जीरो कर दिया। दिस इज व्हाट आई हैव डन। ठीक है, तो आप एक बार अपने हाथ से करके देख लेना, ये बिल्कुल सिंपल मैनिपुलेशन है। आपको E1 और E2 को इग्नोर कर देना है, बिकॉज नाउ यू आर कंसिडरिंग द कंडीशन ऑफ क्रिटिकल स्पीड। तो अब इक्वेशन नंबर 7 और 8 में ये जो ओमेगा बैठे हैं, अब ये नॉर्मल रोटेशन स्पीड नहीं है, अब ये क्रिटिकल स्पीड हो गई। तो आप इसको यहाँ पर एक सफिक्स n भी चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि ओमेगा अगर ओमेगा n होती तो E1 और E2 इग्नोर होते। तो अगर आपने E1 E2 को हटा दिया है, तो बेसिकली नाउ यू आर डीलिंग विथ द ओमेगा n वैल्यूज हियर। ठीक है, यहां तक आ गई अपनी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को देखो, मैं यहाँ पर एक बार रिप्रोड्यूस कर देता हूँ और उसके बाद आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जो आपने पहले देखी हुई है। तो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू, फिर उसके बाद मैं स्क्रीन दिखाता हूँ। A11 M1 ओमेगा n स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स y1 प्लस A12 M2 ओमेगा n स्क्वायर टाइम्स y2 इक्वल टू 0 and A21 M1 omega n square times y1 plus A22 M2 omega n square minus 1 times y2 equal to 0। इक्वेशन 7 और 8 को मैंने एक बार अपने स्क्रीन पे ले लिया है, सेम चीज यहाँ पर लिख ली है, इक्वेशन 7 एंड 8। ठीक है, एंड नाउ look at what I am going to do and tell me whether you agree with this or not. I am going to rewrite these two separate equations in a matrix form like this. कोएफिशिएंट्स को एक स्क्वायर मैट्रिक्स में बंद कर दिया, y1 y2 y1 y2 इनको एक वेक्टर में एनक्लोज कर दिया, और राइट हैंड साइड को जीरो वेक्टर बना। देख के बता दो भाई ये मैट्रिक्स इक्वेशन सही है कि नहीं है। इस तरह का काम आपने पहले भी किया हुआ है। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम जब सिखाया था तो ऐसी मैट्रिसेस आपको बनानी सिखाई थी। प्लीज चेक वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग। I had two equations. I converted them into a single block of matrix equation. सही है सर। सही है ना? यस सर। अब इस मैट्रिक्स इक्वेशन को बनाने के पीछे मेरा पर्पस क्या है? I still want to investigate the value of omega n. But this matrix equation is telling me something. Let us say कि ये जो पूरी ब्लॉक इक्वेशन है इसको मैं कैपिटल A मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट, और ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं y मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब मेरे पास कुल मिला के कहानी ये है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, दूसरी मैट्रिक्स है y, और इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो शर्तिया रूप से 0 मिलता है। तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं? पहला कंक्लूजन तो ये है कि आपकी जो y मैट्रिक्स है ये खुद ही 0 है। अगर मेरी y मैट्रिक्स को ही अगर मैं 0 रख दूं तो a इंटू वाई मेरा 0 आ जाएगा। लेकिन क्या ये सच है? y मैट्रिक्स का 0 होने का मतलब क्या है कि मेरी y1 भी 0 है और y2 भी 0 है। ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि y1 और y2 क्या है? y1 और y2 एक्चुअली मेरी डिस्क की डिविएशंस हैं मीन पोजीशन से, तो वो तो 0 हो ही नहीं सकती। दोनों 0 होने की बात तो बहुत दूर है, उनमें से एक भी 0 नहीं हो सकता। तो इसलिए ये चीज तो पॉसिबल नहीं है साहब। अगर ये पॉसिबल हो जाती तो दिस वुड हैव बीन कॉल्ड अ ट्रिवियल सॉल्यूशन।
ये तो बच्चों वाला खेल हो गया, ये तो मतलब कोई भी देख के बोल देगा a इंटू वाई को जीरो बनाना है तो y1 y2 दोनों को जीरो कर दो, काम खत्म। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा y1 y2 जीरो नहीं है। अब एक ही ऑल्टरनेटिव बचता है, क्या बचता है कोई बता सकता है? देखो ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको जीरो नहीं बनाते हैं, अपन क्या तो करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट अभी भी डिटर्म उसका डिटर्मिनेंट को जीरो डिक्लेयर करते हैं। सो whenever you have a situation like this and your y cannot be zero, that means you are rejecting the trivial solution. In that case, the only alternative available to you is to take the determinant of your square matrix A and put the value of the determinant equal to zero. So, आपको ये सारी बातें ए वाई सब करके नहीं बतानी। आप तो देखो जैसे मैंने लिखा है, मैंने देखो कितना शॉर्ट में लिखा है, मैंने यहां तक इक्वेशन बनाई, इसको मैट्रिक्स इक्वेशन में भी नहीं सेट किया, मैंने सीधे सीधे बोल दिया इग्नोरिंग ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल होता तो y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू जीरो हो जाता, तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं। तो इसकी कंडीशन क्या हो गई, द ओनली रिमेनिंग कंडीशन इन मैट्रिक्स फॉर्म विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। कौन सी वाली मैट्रिक्स? तो यहाँ पर मेरी ए मैट्रिक्स जो बन रही है, ये जो मैट्रिक्स है। अब मेरे पास बस सिर्फ यही चारा रह गया कि अगर मैं अपने सॉल्यूशन को जीरो दिखाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन रिजेक्ट हो गया है। So the only solution available with me now is to take the determinant of this matrix and put the value of determinant equal to zero. बस अब आपको साफ दिख रहा है कि इसकी डिटर्मिनेंट को जब मैं सॉल्व करूंगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, if I put equal to zero, then I will get a quadratic equation of omega square, some coefficient plus some coefficient plus some constant, ऐसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी मुझे, साफ सी बात है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब मैं रूट्स निकालूंगा तो इससे मेरे को ओमेगा एन की दो वैल्यूज मिल जाएंगी करस्पॉन्डिंग टू प्लस एन माइनस। क्या आपको पूरा खेल समझ में आ गया क्या करना है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट, कि हमें कैसे निकाल रहे हैं ये आगे? यही सेम चीजें मैंने बता रखी है यहाँ पे क्या करना है। यस तो अब आप देखो, मल्टीपल डिस्क्स ऑन शाफ्ट क्रिटिकल स्पीड निकालने की अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो अब आपको इसके अंदर, आप देखो इस पूरे खेल में मैंने सिर्फ एक पेज का नोट दिया है आपको, एंड द पर्पस फॉर दैट इज कि आपको एग्जाम में भी सिर्फ इतना सा ही एक्सप्लेनेशन देना है, इसके आगे कुछ नहीं करना। तो देखो अगर दो डिस्क अगर इस तरह से आ गई तो आपकी जो इक्वेशन है ये दोनों तो एज इट इज बनेगी। तो अगर आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, लेकिन ये कैसे आता है, a11 इंटू एफ वन प्लस a12 इंटू एफ टू, ये मैंने आपको समझा दिया। और y2 a21 इंटू एफ वन प्लस a22 इंटू एफ टू कैसे आता है ये समझा दिया। फिर उसके बाद आप इसमें सिर्फ ये दिखा दो कि मैं इसको डाल रहा हूं, और क्रिटिकल स्पीड अगर ओमेगा क्रिटिकल हो जाए तो ओमेगा एन आ जाएगा, तो मेरा E1 इग्नोर हो जाएगा, ये बन जाएगा। एक साइड पे ले आओ, इसकी मैट्रिक्स इक्वेशन बना दो और सीधे बोल दो इग्नोरिंग ट्रिवियल इक्वेशन आई विल गेट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू जीरो, एंड देन सॉल्व इट एंड फाइंड द टू क्रिटिकल स्पीड्स एज द रूट्स ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट्स इट, ये काम करना है अपने को, ठीक है। तो अब मैं आपको जल्दी से एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देता हूं। पूरा सॉल्व करने का तो शायद अपन को टाइम नहीं मिलेगा, बट आई विल गिव यू द वैल्यूज एंड आई विल गिव यू द आंसर, और मैं आपको तरीका बता करके छोड़ दूंगा और आपको ये अपने घर पे खुद सॉल्व करके चेक करना है कि आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम, आई हैव अ bearing
और इस बियरिंग में से एक शाफ्ट पास कराई है मैंने। देयर इज अ रोटर, द मास ऑफ दिस रोटर इज 100 kg। अगर आप चाहें तो अभी हाथों हाथ इस चीज को भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स में नहीं है आपके पास। दिस इज एन एडिशनल क्वेश्चन विच इज a practice implementation of the technique for multiple discs, जो कि यहाँ पर आपको इस पेज पे सिखाई गई है। ठीक है, तो इसको आपको या तो आप बाद में ये जो रिकॉर्डिंग में आपको भेजूंगा उसमें से आप डेटा ले सकते हैं, या फिर आप अगर आज ही इसको प्रैक्टिस करने का अगर प्लान रखते हैं तो यू टेक इट राइट नाउ। एंड द डिस्क, आफ्टर द डिस्क द शाफ्ट इज कंटिन्यूइंग, and I have another disc which is smaller, and the weight of this disc is 50 kg, and the distances taken from the center of the bearings for these two discs are 18 centimeters and 30 centimeters. Additionally, this information is given. The modulus of elasticity of the shaft material is 1.96 into 10 raised to power 11 Newton per meter square. So there is no need to convert anything because this is already in SI units. The area moment of inertia of the shaft cross section is 4 into 10 raised to power minus 7 meter raised to power 4. Again, for your convenience, there is no unit change. सिर्फ unit change यहाँ करना है, वो भी अभी हाथों हाथ ही कर लो। ये 18 सेंटीमीटर जो है इसको आप ले लो 0.18 मीटर, 30 सेंटीमीटर को 0.3 मीटर, बस सारी चीजें SI यूनिट में आ गई। ठीक है, द क्वेश्चन इज सिंपल, फाइंड द टू critical speeds this is the question। कैंटिलीवर टाइप अरेंजमेंट दे दिया है, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा भी हो, दो डिस्क लगी है शाफ्ट पे तो दो क्रिटिकल स्पीड तो आएगी आएगी, वो निकालनी है आपको, और सिंपल वही टेक्निक यूज करनी है जो आपको यहाँ पर दिखाई गई। तो अब आपको इस प्रॉब्लम को, जैसे आरटीयू में ये प्रॉब्लम आ गई, तो आप क्या करोगे, इसको सीधे यहाँ से सॉल्व करोगे। ठीक है, y1 इक्वल टू a11 f1 प्लस a12 f2। इसके पीछे का लॉजिक ही नहीं समझाना आपको, a11 क्या है, a12 क्या है, कुछ नहीं, f1 f2, बस थोड़ा सा ये बता देना है कि आप किस चीज को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, y2 इक्वल टू a21 f1 प्लस a22 f2, और इसमें मैं सिर्फ इतना सा एक्सप्लेनेशन दूंगा, वेयर aij आर फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट। ये क्या होता है, आई एम गोइंग टू अप्लाई यूनिट लोड एट j, आई विल गेट डिफ्लेक्शन एट i, कुछ नहीं बोलना, क्योंकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, थ्योरी नहीं लिख रहे हो। ठीक है, वेयर aij आर फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट्स, ये लिख दिया। हाँ, ये जरूर बताना पड़ेगा कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट ले रहा हूं मैं, ये समझ लेना। ठीक है, f1 एंड f2 क्या चीज है, आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एट 1 एंड 2। फिर आप जो फिगर बनाओगे उसमें एक काम और करना, पुट द लोकेशन, दिस लोकेशन इज 1, दिस लोकेशन इज 2। अब सारी बात सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गई। ठीक है,
एंड y1 एंड y2 क्या है, आर डिफ्लेक्शंस ऑफ शाफ्ट एट 1 एंड 2। बस इतना सा लिख दो। अब इसमें इन दो इक्वेशंस के बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद सीधे एट क्रिटिकल स्पीड E1 and E2 can be ignored. Therefore, F1 को सीधे लिख दो आप तो यहीं पे M1 Y1 ओमेगा n स्क्वायर। ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, पहले Y1 प्लस E1 लिखते थे, आप तो सीधे Y1 करके लिख दो। एंड F2 इक्वल टू M2 Y2 ओमेगा स्क्वायर। अब इन दोनों को ले जा करके अपन इसमें बिठाते थे, ऐसे सेट करो और पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, और उसके बाद आप सीधे इस इक्वेशन को, हालांकि ये आपको थोड़ा सा रफ में करके देखना पड़ेगा। रफ में भी करने की क्या जरूरत है, आप तो सब्सटीट्यूट करो या प्रॉपर्ली चलने दो इसको। ठीक है, और इवेंचुअली जब आप ये सारा काम करोगे तो घुमा फिरा के यही चीज मिलनी है आपको, एग्जैक्ट ये फॉर्मेट मिलेगा। ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें रटना कोई बहुत अच्छी चीज भी नहीं है, क्योंकि ये आपको वैसे भी स्टेप वाइज करके दिखाना है कि F1 F2 को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके सारी चीजों को एक साइड में ले आओ, लेफ्ट साइड में ले जा करके राइट साइड को जीरो कर दो, तो आप देखोगे कि एक या दो स्टेप में, जो कि बहुत आसान है, यू विल ऑटोमेटिकली गेट दिस। फिर उसके बाद आपको सीधे ये लिखना है, फॉर ट्रिवियल सॉल्यूशन आई विल पुट द डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो अब इस डिटरमिनेंट के अंदर देखो, आप यहां तक तो आप आ ही गए, प्रॉब्लम मैंने आपको दी थी, इस प्रॉब्लम के लिए आप यहां तक आ ही गए। अब आपको देखो M1 गिवन है, M2 गिवन है, ये पता है, ये पता है, M1 पता है, M2 पता है, ओमेगा निकालनी है, तो इसको तो छोड़ दो। ठीक है, अब आपको इस डिटरमिनेंट में और कौन सी चीज पता होनी चाहिए, व्हाट इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट यू वांट इन द डिटरमिनेंट? फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट। 4 इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट्स बैठी हैं, उनकी वैल्यूज चाहिए। तो देखो, आपको A11 का मतलब तो आता है, A12 का मतलब आता है, लेकिन वैल्यू कहां से निकाल के लाओगे? समझ रहे हो बात मेरी? A11 का मतलब है फर्स्ट लोकेशन पे यूनिट फोर्स लगाऊं तो फर्स्ट ही लोकेशन पे कितना डिफ्लेक्शन आएगा। A12 का मतलब है सेकंड लोकेशन पे यूनिट फोर्स लगाऊं तो फर्स्ट पे कितना डिफ्लेक्शन आएगा, एंड सो ऑन। लेकिन वैल्यूज तो चाहिए ना, तभी तो ये डिटरमिनेंट सॉल्व होगी। नाउ दिस इज द ट्रिक दैट यू हैव टू एडिशनली लर्न, बाकी की चीजें तो सिंपल है। अब आप देखो, ये कैंटिलीवर टाइप अरेंजमेंट है जो आपको प्रॉब्लम में दिया गया है। ठीक है, नाउ आई विल बॉयल इट डाउन टू अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। कैंटिलीवर बीम ले ली, लोकेशन नंबर 1, लोकेशन नंबर 2। ठीक है, let us say this length is L1 and let us say this length is L2। ये भी दिया हुआ है आपको, लेकिन अभी मैं फॉर्मूला वाइज ले रहा हूं। अब इसमें आपको ये कहा गया A11 की वैल्यू निकालो। A11 का मतलब है फर्स्ट लोकेशन पे यूनिट फोर्स लगाइए 1 न्यूटन, और ये पता कीजिए कि फर्स्ट ही लोकेशन पे कितना डिफ्लेक्शन आया। किसी को फॉर्मूला पता है क्या इसका? अगर मैं फर्स्ट लोकेशन पे 1 न्यूटन की फोर्स लगाऊं तो फर्स्ट लोकेशन पे कितना डेल्टा आएगा? यही है आपका A11। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है डेल्टा का, कैंटिलीवर बीम के लिए WL³ अपॉन 3EI। अब देखो, E आपको गिवन है, I आपको गिवन है, W कितना है? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन। तो ये तो हो गया गायब, तो डेल्टा इज सिंपली L³ अपॉन 3EI। ठीक है, L बताओ कितना है, जहां पर फर्स्ट लोकेशन पे L की वैल्यू कितनी है?
0.18 ने इस फिगर में बताओ L1 L1, ठीक है। तो आपका जो A11 है, दिस इज L1 क्यूब अपॉन 3EI। बात खत्म। आगे चले। A22 क्या है? A22 का मतलब आप अब की बार फोर्स लगाएंगे 1 न्यूटन की सेकेंड लोकेशन पे, और जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा वो नापेंगे सेकेंड ही लोकेशन पे। तो इसका भी वही फॉर्मूला है, डेल्टा इज इक्वल टू WL³ अपॉन 3EI। बस इसमें फर्क क्या है, W तो आपका हो गया 1, और L की जगह क्या रखूंगा? व्हाट शुड बी L नाउ सेकेंड लोकेशन पे? L2। L2। तो आपका A22 हो गया L2³ अपॉन 3EI। ये प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। अब आपको दो इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट और चाहिए, बल्कि मैं तो कहूंगा दो नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए, और मैं निकालूंगा A12। यानी कि अब मैं इस प्रॉब्लम की तह तलाश कर रहा हूं मैं। ये फर्स्ट लोकेशन है, ये सेकंड लोकेशन है। मैं ये कह रहा हूं सेकंड लोकेशन पर 1 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा। तो फर्स्ट लोकेशन पे कितना डिफ्लेक्शन आएगा, अब मुझे ये चाहिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसके लिए आपको एक बीम फॉर्मूला रटना पड़ेगा। तो घुमा फिरा करके देखो, कई बार ये बात सिद्ध होती जा रही है कि एक ऐसी शीट आपको मैंने कही थी बीम फॉर्मूले की डाउनलोड करने के लिए। आई एम 99% श्योर कि 99% स्टूडेंट्स ने नहीं किया होगा डाउनलोड, और याद भी नहीं होंगे। कोई बात नहीं, ये काम भी मैंने आपके लिए कर दिया है। आई हैव डाउनलोडेड अ गुड शीट कंटेनिंग ऑल द फॉर्मूले ऑफ बीम डिफ्लेक्शंस, और इस बीम डिफ्लेक्शन फॉर्मूले की शीट को मैं आपको आज सेंड कर दूंगा। बट प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूले बाय हार्ट। नाउ लुक एट दिस फॉर्मूला। ये बोलता है डिफ्लेक्शन एट एनी सेक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो ये एक्स लोकेशन पर डिफ्लेक्शन बताता है अगर पी लोड फ्री एंड पे लगा है तो। समझ रहे हो? तो आप इधर फिक्स्ड एंड से कोई सी भी एक लोकेशन ले लो विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। तो यहां पर कितना डिफ्लेक्शन आया है, अगर P लोड यहां लगाऊं तो उसका फॉर्मूला है Px² अपॉन 6EI 3L-x। ठीक है, इस फॉर्मूले को अपन इंपोर्ट कर लेते हैं। P L इंटू 3x - L, सॉरी 3L - x अपॉन 6EI। ठीक है, अब ये तो फॉर्मूला है जब L तो आपका कंप्लीट लेंथ ऑफ बीम है, और X आपका वो सेक्शन है जहां पर आप लोड निकालना चाहते हैं। तो अब आपका जो X है वो फर्स्ट लोकेशन की डिस्टेंस है। तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू योर L1। ठीक है, तो X की जगह पे L1 रख दो, और टोटल लेंथ ऑफ बीम की जगह पे L2 रख दो। तो दिस इज योर फॉर्मूला। ये L है या स्क्वायर है? सॉरी, स्क्वायर। दिस इज L
और ये x है ना यहाँ पे, px square 3l minus g, so this will be 1. This is your formula. ठीक है, अब वापस से लोड कितना लगा रहे हो आप, p तो 1 है तो इसको हटा दो, ठीक है, तो A12 is L square L1 square into 3L2 minus L1 upon 6 है। अब आपने A12 निकाल लिया है तो A21 कितना होगा, क्या इसके लिए फिर मेरे को कोई फॉर्मूला देखना पड़ेगा, इसमें कि आपको अब कोई फॉर्मूला नहीं देखना, बिकॉज नाउ यू कैन इन्वोक मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम। यह चीज आपको पता ही है कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट्स जो होती हैं वो इंडेक्स के सेम ना होने पे एक दूसरे से रिप्लेसेबल होती है, यानी कि A21 है तो वो A12 के बराबर जरूर होगा, तो आपको सिर्फ एक A12 का ये फॉर्मूला लगाना है और यही जो वैल्यू आ रही है वो सेम चीज A12 के लिए भी ले लेना है। एंड नाउ यू नो ऑल द वैल्यूज, A11 पता है, A22 पता है, A21 और A12, ये चारों पता हो गई। अब ये चारों वैल्यूज आएंगी आपके इस लोकेशन पे, इनको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करके आपको इन जगहों पे रखना है। तो अब आपकी पूरी डिटर्मिनेंट के अंदर एक ही अननोन है, वो है आपका ओमेगा एन। अब इसकी क्वाड्रेटिक बनेगी और क्वाड्रेटिक को जब आप सॉल्व करोगे देन यू शुड बी एबल टू गेट द आंसर। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स को अभी तो आपको कैंटिलीवर बना के दिया था, आपको सिंपली सपोर्टेड वाला प्रॉब्लम भी बना करके दे सकते हैं इसको। दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ अ क्वेश्चन। देखो जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ। बोला यहाँ पर एक बियरिंग लगा दी, यहाँ पर एक बियरिंग लगा दी और आपको ये डिस्टेंसेस दे दी। And now the procedure up to this point remains the same. ये देखो आप F1 F2 की ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये दोनों सेट्स ऑफ इक्वेशन आएगी, सब कुछ डिट्टो सेम है, सिर्फ फर्क किधर आएगा, आप A11 A21 A12 और A22 कैसे निकालते हैं। अभी करंट प्रॉब्लम के लिए आपने कैंटिलीवर बीम के फॉर्मूले यूज किए थे, अब आपको A11 A22 A21 निकालने के लिए बीम फॉर्मूले की शीट में जाना पड़ेगा और सिंपली सपोर्टेड बीम पे जाना पड़ेगा और उसके अंदर के फॉर्मूले देख करके अप्लाई करना पड़ेगा। दिस वन, ये फॉर्मूला है और इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी है, वो भी मैंने आपको पहले की क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई एग्री, लेकिन आपको समझ में तो आ गया कि नहीं आ गया ये बता दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंफर्टेबल हो गए, ये मैं पूछूंगा भी नहीं, बिकॉज आई नो ये है कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने हैं एक तो, और अगर ये सारी चीजें याद नहीं है तो ये प्रॉब्लम आपसे हिल नहीं सकती। लेकिन कुल मिलाकर के अप्रोच क्या है और फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट्स कैसे लगाने हैं, कैसे निकालने हैं, टाइप ऑफ बीम देख करके फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट्स के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? अभी से ठीक है, थोड़ी मेहनत तो आपकी तरफ से लगेगी ही लगेगी, क्योंकि दिस सब्जेक्ट as was stated in the start of your session itself, this is one of the toughest subjects in your entire curriculum. तो अभी चीजें धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेटेड होगी, अभी तो और भी इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स बचे हुए हैं, बट वी कैनॉट हेल्प इट, द सब्जेक्ट इज लाइक दैट। मैंने आपको जितना हो सकता है समझा दिया, आगे चीजों को याद करना, स्ट्रीमलाइन करना, फॉर्मूले को लिख करके रटना, बीम फॉर्मूले याद रखना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको करना पड़ेगा, ये मैं आपके लिए नहीं कर सकता। मैं आपको बता के दे सकता हूं कि क्या चीज याद करनी है, कहाँ अप्लाई करनी है, कैसे करनी है। ठीक है, तो प्लीज कीप अप योर हार्ड वर्क, अदरवाइज दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू। आगे आने वाले प्रॉब्लम्स अब और भी डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। एनीवे, with this we stop and complete the topic of critical speeds of shaft, और अब नेक्स्ट क्लास में मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स हम स्टार्ट करेंगे।
Now please wait. Let me take your attendance.